So let's begin with the examination of motor system of lower limbs. Obviously you need, in examination of motor system of lower limbs, you need exposure. Generally it can be obtained up till the mid-thigh level. So you need to expose at least to the mid-thigh level, because you need to look for any atrophy of the quadriceps femoris muscles. Again, after introduction and obtaining informed consent, the first step is to have an overall view of the patient. Remember that generally when legs are weak, they are externally rotated. So, for example, if left leg is weak, it would be externally rotated. When arms are weak, they are internally rotated. So, like if you see a patient whose right leg is externally rotated and right arm is internally rotated, it's most likely a case of right-sided hemiplegia. If both legs are externally rotated, it may be a case of paraplegia. Then you have to look for, obviously you compare the bulk of the muscles on both sides. The accurate method is by measuring the circumference at the calf and at the thigh. You take one anatomical landmark. For example, you can take tibial tuberosity as your anatomical landmark. You can go 6-7 centimeter below, 7-8 centimeter above the tibial tuberosity, and you can measure the circumference of the leg. As a rule, when there is wasting of these muscles, जो shin का lateral border है, groove जो है, that becomes more prominent in case of wasting of the calf muscles. Then you check for any fasciculations. Significant fasciculations are those that are spontaneously present, but you can also tap the muscle and look for any fasciculations. So I will tap the muscles. मसल को टैप करेंगे, बाज़ लोग बोन को टैप कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ नो मसल, लाइक एंटीरियर शिन के ऊपर वो टैप कर रहे हैं, इट्स यूजलेस. यहाँ पे टैप करें, यहाँ पे टैप किया आपने, एंड लुक फॉर एनी fasciculations. You check for the tone of muscles at different joints. You can get an overall idea by you can first get an overall idea of the tone. वैसे आप में से कोई आएगा who can hold the mic for me, ताकि नीचे वाले लेक्चर हॉल में नहीं, आपके लिए मुश्किल होगा. थैंक यू. नीचे वाले उनके पास तो वो दूसरा था माइक, कॉलर माइक था, यहाँ पे वो है नहीं. So we can check for the tone. This will give us a rough idea, but the better way to check for the tone is movement in the full range of motion of a joint. So just या आप इस तरह से नहीं कर सकते, it is a full range of motion and you need to compare it on both sides. आपने एंकल जॉइंट पे किया, नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. कुछ लोग होते हैं शुरू में क्या देते हैं, बाबा जी लगता है तिलियाँ छाड़ दो, वो और ज़्यादा कड़ा लेते हैं. सो जनरली there is no need to say until you find कि वो voluntarily contract कर रहा है, because once patient becomes more apprehensive, आप उसे जितना कहेंगे रिलैक्स करो वो उतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर पसीने आपके छूटते हैं. इस तरह से हिप के ऊपर इट्स अ सर्कमडक्टरी मूवमेंट, उससे आपको हिप के ऊपर टोन का पता चल जाएगा. सेम इज ऑन द अदर साइड, इट्स अ सर्कमडक्टरी मूवमेंट. सो आफ्टर checking for tone, you check for power of the muscles. कई लोगों को मैंने देखा है एग्ज़ाम में, आपको भी समझना चाहिए कि कौन से हैं जो बायलैटरल साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं और कौन से मसल ग्रुप्स नहीं चेक हो सकते. मसलन पेशेंट से कहते हैं भाजी 2 ही लता होते चुको, अब मुझे बताएं पहलवान भी शायद दो, वो जिम्नास्ट तो नहीं है कि वो दोनों इकट्ठी उठाएगा. मतलब अगर आपने हिप के ऊपर फ्लेक्शन चेक करनी है तो पहले एक साइड की चेक कर लें, फिर दूसरी. ऐसी भी बेसब्री क्या, ये टांग सीधी ऊपर उठाएं. अनदर रूल, आपने जो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट चेक करना है, आप रेजिस्टेंस, यू विल अप्लाई रेजिस्टेंस और प्रेशर अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल. कुछ लोग यहीं पे चढ़ जाते हैं, टांग उठाएं
मैं फिर पहलवान तो नहीं है बेचारा यहाँ से उठा लेगा, टांग सीधी ऊपर उठाएं, मुझे नीचे नहीं करने देनी आपने, ठीक है ना। इट्स अ कॉन्ट्रैक्टेड मसल और उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। आपने जैसे ही फ्लेक्शन हिप के ऊपर चेक की, नो, यूर चेकिंग फॉर फ्लेक्शन, यहीं पे हाथ यहाँ पे रख लें, ठीक है, नीचे की तरफ जोर लगाएं, मुझे ऊपर नहीं करने देना आपने, ओके। ये टांग ऊपर उठाएं, मुझे नीचे नहीं करने देनी है आपने, ठीक है। अब नीचे की तरफ जोर लगाएं, पूरा जोर लगाएं, ओके। सो दिस इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एट द हिप। चूँकि आप यू नीड टू ग्रेड द पावर ऑफ द मसल्स, सो अगेन यू कैन स्टार्ट midway. If a person can raise the leg, it's 3 or more, 3, 4, 5. If a person cannot raise leg, it's 2, 1 or 0. अगर नहीं उठा सका उसे कहें साइड पे मूव करें, अगर साइड पे मूव कर लिया तो कितनी पावर हुई, 2. अगर साइड पे मूव नहीं कर सका बट देयर इज जस्ट अ फ्लिकर ऑफ मूवमेंट, इट्स 1. इफ इवन दैट फ्लिकर इज नॉट देयर, इट्स 0. अब अगर ऊपर उठा ली, जैसे आपने रेजिस्टेंस अप्लाई की वो नीचे आ गए, जस्ट आपने रेजिस्टेंस अप्लाई की और नीचे आ गए, इट्स 3. इफ पर्सन कैन होल्ड अगेंस्ट सम रेजिस्टेंस बट इट्स नॉट नॉर्मल, पावर इज नॉट नॉर्मल, दिस इज 4. एंड इफ 5 इज ऑब्वियसली द नॉर्मल पावर, नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ द मसल. हिप के ऊपर अब अगली आप चीज़, टांगे बाहर की तरफ खोलें, ठीक है, अब अंदर की तरफ जोर लगाएं, ये मैं साइमल्टेनियसली चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने नी के ऊपर फ्लेक्शन एक्सटेंशन चेक करनी है तो भी इस पोजीशन के अंदर ले आएं, ये भी आप साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं, मगर प्रेफरेबली एक साइड की पहले चेक कर लें। टांग सीधी करें, टांग हाँ सीधी करें, और दूसरा अपनी तरफ जोर लगाएं, इकट्ठी करें टांग। मरीज़ इन टर्म्स को ज़्यादा अच्छा समझता है बनिस्बत मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं, उसको समझ नहीं आ रहा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना हाथ आप रखते कहाँ पे हैं हाथ। अगर आपने दोनों हाथ यूँ रखे हुए हैं तो उसको ये नहीं समझ आएगा कि इस हाथ की तरफ जोर लगाना है, उस हाथ की तरफ जोर लगाना है। सो ठीक है, अपनी टांग सीधी करें, और अगर उसे समझ नहीं आ रही तो उसे कहें मेरे हाथ की तरफ जोर लगाएं, ठीक है। अपनी लात सीधी करो, ठीक है, अपनी तरफ जोर लगाओ, इकट्ठी कर लो लात नो, ठीक है। यू कैन यूज़ सपोर्टिंग सेंटेंसेस एज वेल, कि अगर एक से नहीं, टांग सीधी कर लें, इकट्ठी करें, अपनी तरफ जोर लगाएं, ठीक है। और अगर आपको पंजाबी आती है तो बराए मेहरबानी बोल लिया करें एग्ज़ाम के अंदर, उससे कोई आपकी इल्मियत में कमी नहीं आ जाएगी मरीज़ के साथ है। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो ही वॉज प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, हाफिज़ एजाज साहब। ही वॉज डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ मेडिसिन, ही वॉज फेलो ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी। वो एक पेशेंट थी, उनसे जा कहते हैं की हाल ने ताड़े, तो उनके अटेंडेंट, डॉक्टर साहब शी इज़ MSc ज़ूलॉजी, आप से पंजाबी में बात करें। तो मेरे ख्याल आई मीन देयर इज़ नो शेम, जब आपको आती है पंजाबी, पेशेंट के कंफर्ट का ख्याल रखें, वो जिस ज़ुबान में अच्छी तरह से। मैंने ये भी देखा, स्पेशली दिस इज आई नो देयर इज़ सम डिफ़िकल्टी विद द फॉरेनर्स, आई एग्री, मगर जो यहाँ वाले हैं मुफ्त में, ओके स्माइल करें, and let me tell you, it's very important that you communicate with the patient in a way he can understand. हमारे when I was a postgraduate resident, तो हमारे consultant थे, उन्होंने राउंड शुरू किया, तो he was trying to check the trigeminal sensation of an elderly male जो कि गांव से था। तो उसे ने कहा बाबा जी अखा बंद कर लो, बाबा जी ने आंखें बंद कर ली, तो यहाँ पे उंगली लगा कहते हैं बाबा जी की हो रहा है। बाबा जी ने कहा पुत्र राउंड हो रहा है। थोड़े से बेचारे घबराए, उन्होंने फिर लगा के नहीं बाबा जी मैं की कर रहा, पुत्र तुसी मेरे नाल गल्लां कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आई मीन यू नीड टू कम्युनिकेट टू द पेशेंट in a way he or she can understand. अच्छा, so इसके बाद you need to check for the power at the ankle joints. नीचे की तरफ जोर लगाएं, you can check simultaneously, ऊपर की तरफ जोर लगाएं. You are checking plantar flexion and dorsiflexion. So you have checked for the power of muscles of
lower limbs. Now the next step is to check for the deep tendon reflexes. बाज़ वक़्त एग्जामिनर्स दे आर इन हरी. आप में से किसी ने मुझे वॉर टेस्ट दिया है मेरे पास? अच्छा, कुछ लोगों ने दिया. सो अगर मैं जल्दी में और मैंने चेक करना है कि आपने कुछ क्लिनिकल स्किल्स हैं आपके अंदर तो नहीं, तो मैं आई वुड आस्क टू एंकल रिफ्लेक्स, ओके, या नी जर्क, जो भी. बट डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आप कितनी प्रैक्टिस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू होल्ड अ हैमर. इस एंड से कुछ क्लासिकली वो कहते हैं द अदर एंड ऑफ द हैमर शुड नॉट बी विजिबल. आप जितना डिस्टेंस से पकड़ेंगे उतना अच्छा फ्री फॉल होगा. सेकेंड रूल फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एलिसिटेशन इज मसल शुड बी एक्सपोज्ड. ठीक है, आप टेंडन तो एक्सपोज कर लेते हैं. समटाइम्स देयर इज नॉट movement at the joint but there is just a contraction of the muscle. So अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे तो आपको contraction का पता नहीं चलेगा. So you need to expose obviously, like नीजर कर रहे हैं तो tendon should be semi stretched. There is no harm in performing deep tendon reflex like this. मगर कुछ लोगों का होता है कि जी, कुछ एग्जामिनर्स का होता है कि जी नहीं, इसको सपोर्ट करना चाहिए. उसका आसान तरीका ये है, ये आपने ये हाथ यहाँ पे रख लिया. हमने फीमेल्स देर वहाँ हैवी मेल्स होते हैं, बाज़ पेशेंट होते हैं और उनके लिए टांग उठाना वबाले जान बना होता है. सो अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक उठा कोशिश कर रही होती हैं कि उनकी हवा में मुअल्लक हो टांग, को ज़रूरत नहीं है उसकी. यहाँ पे बस ये दिस इज़ एन ईजी वे टू परफॉर्म द नी जर्क. दूसरी चीज़ ये, देयर शुड बी अ फ्री फॉल. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ फ्री फॉल you need to first fix your shoulder joint and elbow joint. सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे मूवमेंट होनी चाहिए. उसका तरीका ये है कि आप पहले टेंडन को आइडेंटिफाई करें, हैमर की पोजीशन वहाँ पे सेट कर लें और उसके बाद फिक्स ऑल अदर जॉइंट्स और यहाँ से लाके स्ट्राइक करें. सो विल गेट अ. अच्छा, एक और, आज आप सब जाके अच्छी तरह से देख लीजिएगा. अब मरीज़ को तो कहते हैं कि ये लगता नहीं है, मगर ख़ुद भी देखे लगता नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग ऐसे कर रहे होते जैसे पता नहीं तलवार का वार करने लगे हैं. और कुछ की ज़ुबान भी बाहर आ जाती है. और जैसे उसको नहीं लगने लगा, ख़ुद को लगने लगा है. और फिर अच्छा, फ्री फॉल का वो ड्रामा रचा के फिर क्या करते हैं. सो इट शुड बी, इट्स अ फ्री फॉल. कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, मरीज़ की जान नहीं निकल जाएगी अगर थोड़ा सा ज़ोर से आके लग जाएगा. इसको ज़रा फ्री फॉल होना चाहिए, इसको एलिसिट भी उसी वक्त होगा. दूसरी तरफ का ये आपने रखा, जिस इसमें कोई मुश्किल नहीं, सेमी स्ट्रेच्ड भी हो गया, आपकी आर्म की सपोर्ट भी आ गई. एंड अगेन आइडेंटिफाई इट और यहाँ पे स्ट्राइक करें. कोई बात नहीं, अगर एक दफ़ा मिस भी हो गया तो लगता तो नहीं है. नो, फॉर द एंकल जर्क ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी सेमी स्ट्रेच्ड, फ्लेक्शन एट नी. यहाँ पे इसको आप फुट को डिस्टली होल्ड करें, थोड़ा सा इसको स्ट्रेच, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना आपने और बहुत रिलैक्स, सेमी स्ट्रेच्ड. और ये यूँ आप स्ट्राइक करेंगे तो हो सकता है ऊपर लगे नीचे लगे. थोड़ा सा आप अगर टेंजेंशियली ला के स्ट्राइक करें तो देयर मोर चांसेस यू विल हिट द एक्लेज टेंडन. सो इस तरह से आप इसको. ऑन द अदर साइड अगेन यू कैन होल्ड इट लाइक दिस और यहाँ से ला के स्ट्राइक करें. सो देयर इज, सपोज यू कुड नॉट एलिसिट डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नेवर फॉरगेट टू डू दी reinforcement. So reinforcement करवाएं अगर एलिसिट नहीं हुआ. If you are able to find a reflex, deep tendon reflex, especially when it was exaggerated, you need to check for clonus. Clonus बहुत गलत तरीके से बहुत सारे लोग चेक करते हैं, यहीं से इसको यूँ स्ट्रेच कर देते हैं. नहीं, there should be flexion at hip, flexion at knee, and then you stretch at the ankle joint. So the best way is
यू कैन होल्ड इट लाइक दिस, पूरी सपोर्ट भी दी आपने, यहाँ से राइट हैंड से फुट को होल्ड करें। एक बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मालिश नहीं कर रहे आप मरीज़ की, मैं जस्ट एक दो दफ़ा किया और आपने सस्टेन स्ट्रेच में रखें। एंड इन केस ऑफ क्लोनस दे वुड बी लाइक दिस। ये है एंकल क्लोनस। आप में से आधे लोगों का एग्ज़ाम के दिन पॉजिटिव होता है क्लोनस अगर किया जाए तो, बिकॉज अनदर कॉज ऑफ एक्सेजरेटेड डीप टर्न रिफ्लेक्सेस इज एंग्जाइटी एंड sympathetic outflow. So after checking for the clonus, what would be the next step? Patellar ना करें, skip कर दें उसको। प्लांटर्स, सो प्लांटर कभी भी हैमर की उससे नहीं आपने चेक करना है कभी भी। इसके लिए आपके पास अगर अच्छी वाली गाड़ी है तो उसकी चाबी निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है ना। क्लबिंग चेक करते हुए अगर किसी सेक्रेटरी हेल्थ का कार्ड है तो वो रख लें, वो ज़्यादा अच्छा। जस्ट किडिंग। सो म्यूट है, लेकिन उससे पहले आपने मोबिलिटी चेक कर लें इस जॉइंट की। पेन के लिए भी पूछ लें, एल्डरली लोगों में वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो ये। सो क्या क्या करना है, अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट। So one of the causes of upgoing planters is malingering. So what are the equivalents of a plantar reflex in the Oppenheim's or Gordon sign? Oppenheim sign is you rub along the shin, ठीक है, और इसको देखते हैं आप, सेम तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ बेबिंस्की। दिस इज ओपनहाइम साइन। व्हाट इज गॉर्डन साइन? यू प्रेस द Achilles tendon and look at the movement of, because Babinski is a nociceptive stimulus, you give, actually it's a pain stimulus, so pain stimulus आप यूं भी दे सकते हैं, you can rub along the anterior border of the shin and you can pinch the Achilles tendon. This is called Gordon sign. Next step is to look for the coordination of movement. Heel knee shin test, ये सबसे मुश्किल लगता है लोगों को करना, और पेशेंट के लिए समझना भी बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। इफ़ देयर इज़ सिग्निफिकेंट वीकनेस यू कैन नॉट परफॉर्म हील नी शिन टेस्ट ऑब्वियसली। जब पावर 3 या उसके करीब हो तो इट्स डिफ़िकल्ट, उसमें वैसे ही एटेक्सिया सा आ जाता है। ये टांग ऊपर उठाएं, अपनी एड़ी घुटने पे रखें, इसको रगड़ते हुए दोबारा टखने तक आ जाएं और फिर उठा के रख लें। चलें दोबारा करें ये सारा। अब ये आप कहते हैं जी, एक कुछ लोग कहते हैं जब मैं 1 कहूँगा आपने टांग ऊपर उठानी है, 2 कहूँगा यहाँ रखनी है, 3 कहूँगा यहाँ रखनी है। The purpose of the coordination, to check the coordination, is can a person perform complex movements or not? ठीक है, जब आपने उसको ब्रेक कर दिया into 1 2 3 4 तो ऑब्वियसली ये वो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट नहीं रही। एक दफ़ा समझा ज़रूर दें कि पहले आपने टांग ऊपर उठानी है, मेरे हाथ को लगानी है, फिर आप घुटने पे रखें, रगड़ते हुए नीचे ले आए, उठा के नीचे रख दें। ठीक है, आप ऐसे करें दाईं टांग के साथ। ठीक है, शाबाश। ठीक है, फिर तेज़ी के साथ करें। अब इस टांग के साथ करें। कॉमनेस्ट मिस्टेक इज़ एक साइड पे करते हैं। मैं भी अक्सर फिंगर नोज एटेक्सिया एक साइड पे चेक करके until I appeared in my FCPS exam, तो उससे पहले मैंने किया to make sure check on the both sides, and then you can check for the gait of the patient. This concludes the examination of motor system of lower limbs.